नमस्कार. Today we are talking about a story of deep connection. इंडिया और तिब्बत का रिश्ता. This is not just about border or politics. It's about a bond woven with Buddhism and shared culture values. Yes, 7th century के आसपास जब बुद्धिज्म भारत से तिब्बत गया, it transformed Tibetan religion, art और philosophy in a very deep way. आज भी तिब्बतन बुद्धिज्म में नालंदा ट्रेडिशन के शास्त्र, साधना और दर्शन जिंदा है. दोनों कल्चर्स में करुणा, अहिंसा और मोनेस्टिक लाइफ के प्रति रिस्पेक्ट कॉमन थ्रेड है. तिब्बतन सोसाइटी ने हमेशा इंडियन स्कॉलर्स को ग्रेट रिवरेंस से देखा है और तिब्बत बिकम अ सेंटर फॉर प्रिजर्विंग इंडियन बुद्धिस्ट टीचिंग. यस, और इन्हीं हिस्टोरिकल और कल्चर टाइज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है प्रोफेसर कावेरी गिल. प्रोफेसर गिल नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं एट फॉर एक्सीलेंस इन हिमालयन स्टडीज, शिवनादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, दिल्ली में. शी इज द डॉटर ऑफ लेट डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. यस, आपने बीए, एमफिल, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल स्टडी कंप्लीट किए हैं और यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूके में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया है. इंडिया में भी आपने गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और 2017 में वापस एकेडमिया में आई. 2021 से 2022 में आप प्रिंसिपल रही एट दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, बेंगलुरु में, और 2014 में आपने तिब्बत हाउस, न्यू दिल्ली में नालंदा फिलोसफी स्टडी करी है और 2022 में आपने 6 साल नालंदा मास्टर कोर्स कंप्लीट भी किया है. आप यूनिवर्सिटी लेवल पर सेक्युलर एथिक्स और अहिंसा बेस्ड कोर्स टीच करती हैं और नालंदा ट्रेडिशन, तिब्बतन नॉन वायलेंस स्ट्रगल और रिफ्यूजी इश्यूज पर देश विदेश में लेक्चर्स देती हैं. 2024-2025 के लिए आप गोवा यूनिवर्सिटी में दलाई लामा चेयर इन नालंदा स्टडीज होल्ड कर रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए इनॉग्रल लेक्चरर भी हैं. और सबसे खास बात, आपको हिज हॉलीनेस दलाई लामा से भिक्षुनी दीक्षा प्राप्त हुई है. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका वॉइस ऑफ किन्नौर में. और जितनी भी बातें मैं आपके बारे में बताऊं वो बहुत कम है मैम. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम, एक बार आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बातें बताएं. Good morning, Raksha, and thank you so much for this wonderful invitation to speak to the community radio of Kinnaur. It is such an honor and a privilege for me this morning. To introduce myself briefly, I am an academic. I am with the Center of Excellence in Himalayan Studies at Shivnada University as a non-resident senior fellow. And prior to that, I have studied, my main life has gone in study and learning, but it was in economics, political economy. So I was very many years at the University of Cambridge in UK. And then I returned to India and I have been working here. Now it's about 15-17 years and teaching full-time in Shivnada University, the International Relations Department. And then more recently, my focus has been really on the Tibetan studies, Nalanda philosophy. So these have been my areas of interest for the last recent past. So it is a great privilege to be here and to give an interview to the Kinnaur community radio, because to narrate a personal story, when I was growing up, of course, Punjab trifurcated into 3 states in 1966, and I was born much after that. But my father, who had a great love of the mountains, took us to Kalpa, Kinnaur as children. And in one of the villages, we saw a puppy, Lhasa Apso dog. Yeah. And that dog, it was a very poor village, and they shared that they didn't have money to keep the puppies alive and everything. So sometimes they buried the puppy. In any case, this puppy came with us to Chandigarh and was our dog for many years, gave us a lot of pleasure. And in 97, when that dog passed away, my mother and me had an audience with the Dalai Lama in Dharamsala. And I took the photo of this dog because we were very sad and we were crying. We were very young. And His Holiness the Dalai Lama blessed the photo. Many years later, I realized that this is a custom that Buddhists do, Tibetan Buddhists do, that somebody has deceased or died, they show the Lama the picture and the prayers are made. So I would say that that dog had an amazing karma. I wanted to share my personal history with Kinnaur. तो थैंक यू रक्षा. उस टाइम तो जैसे मैं कह रही थी, बहुत छोटे उम्र में किन्नौर में आई थी मैं पेरेंट्स के साथ, और जैसा ये मेन कनेक्शन था कि हमारा ये लासा एप्सो था, जिसके देहांत के बाद फिर उसकी ब्लेसिंग, उसकी फोटो की ब्लेसिंग दलाई लामा जी ने की. मैं एडल्ट लाइफ में नहीं गई क्योंकि वहाँ पहुंचना काफी मुश्किल है.
देखा जाए तो। पर किन्नौर का मैंने बहुत बहुत पढ़ा हुआ है। जब से मेरा इंटरेस्ट बहुत सीरियस हुआ है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, तो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि किन्नौर में बहुत बहुत बोधिसत्वा बीइंग्स ने जन्म लिया है। एंड मैं लिस्ट करूंगी थोड़े नाम जो मेरे को बहुत जानने में है। फॉरमोस्ट तो खुनु लामा रिनपोचे, टेंजिन ग्याल्सन, नेगी लामा भी कहे जाते हैं। तो अगर उनकी हिस्ट्री देखा जाए, उनके सवाए तो ऑफ कोर्स हिज एक्सीलेंस ग्याब्जे ग्याबोंग तुंगकू रिनपोचे, आचार्य सेम्पा डोजी, लोचन रिंचन जांगपो, तो जो वो ग्रेट 11th सेंचुरी लॉटसावा रिंचन जांगपो के रीइनकार्नेशन है। Then His Eminence 9th द्रुक्पा चोगिन रिनपोचे, फिर आजकल जो वाइस चांसलर है सारनाथ में वांगचुक डोजी नेगीला जी, प्रोफेसर वांगचुक डोजी नेगीला, फिर बहुत गेशिमा है धर्मशाला में। ये सब किन्नौरी हैं। और अगर मैं कुनु लामा रिनपोचे, टेंजिन ग्याल्सिल की बात करूं, उनकी लाइफ हिस्ट्री बिल्कुल तिब्बत से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो वो 19 साल की उम्र में वो पहली बार गए थे तिब्बत, और फिर वहाँ वो गए, पहले तो वो पंचन लामा के सीट में रहे, फिर उसके बाद वो काफी वहाँ पर अलग अलग जगह में खाम, दारगे, लासा, सब जगह रहे। कुल मिल जुल के तो 30 साल के ऊपर उनका आना जाना तिब्बत और इंडिया में। और फिर जब 1959 हुआ और दलाई लामा जी एग्जाइल में आ गए, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। खुनु लामा रिनपोचे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके स्टे में जब वो तिब्बत में थे, वो स्टूडेंट के रूप में गए थे और उनका बहुत खातिर किया गया, उनका बहुत मान दिया गया, क्योंकि वो वहाँ के बहुत रूलर्स के टीचर भी बने। जैसे दरगे की रॉयल फैमिली खाम में, तो खुनु लामा रिनपोचे उनके टीचर भी रहे। तो उनका वहाँ बहुत मान था, सम्मान दिया उनको। तो जब 1959 हुआ है और तिब्बती सब इंडिया में आए, उनका सब मुल्क खो लिया, चीन ने खो लिया, उनका सब लॉस हो गया। उस टाइम दलाई लामा जी ने खुनु लामा रिनपोचे को भी रिक्वेस्ट किया कि वो आके स्टूडेंट्स को एग्जाइल में, तिब्बती स्टूडेंट्स को ग्रामर, पोइट्री, ये सब चीजें पढ़ाएं मसूरी में। तो इस वजह से खुनु लामा रिनपोचे बहुत बहुत मशहूर हो गए तिब्बतियों में। और उनका ये है, माना जाए तो वो दलाई लामा जी के टीचर भी माने जाते हैं, जांगचुक के ऊपर, ये बोधिचित्ता के ऊपर। बोधिचित्ता के ऊपर उनका जो व्यवहारन था, उनका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन था, वो बहुत बहुत डीप है। और अभी आप दलाई लामा जी के लाइफ, तो उनमें एक थंका में उनके टीचर दिखाई देते हैं और उनमें खुनु लामा रिनपोचे का भी इमेज है। तो ये तो हुआ कनेक्शन किन्नौर और तिब्बत और बुद्धिज्म का। That's really nice. I can't imagine, ma'am, from Punjab to Tibet and the world. मेरी personal story तो of course I was born in a Sikh family. Yeah. But you know, my father was posted, his first posting before the trifurcation of Punjab and everything. He had a great love of mountains. उनको पहाड़ बहुत बहुत पसंद थे। तो उन्होंने बहुत टाइम काटा लाहौल स्पीति में और कई जगह में। उन्होंने 2 किताबें लिखी हिमालयन रीजन में। और फिर शादी के बाद भी, और जब हमारी सब जन्माइश हुई, सब हम भी बहुत छोटे हुए, हमको पहाड़ों में लेकर गए। तो आई थिंक दे ट्रांसफर्ड दैट लव टू अस। यस यस, टच वुड। मैम, ट्रेडिशनली मैं आपसे जानना चाहूंगी, तिब्बतन सोसाइटी ने इंडिया को एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हब के रूप में कैसे देखा है? हाँ, तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखा जाए तो तिब्बत रिलेशंस, जैसे मैं कह रही हूँ जी, कितना डीप है। अब ये खुनु लामा रिनपोचे के लाइफ बायोग्राफी में हम देख रहे हैं। तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 7th सेंचुरी में थे किंग सोंगस्टन गाम्पो, और उन्होंने थॉनमी संबोटा को इंडिया भेजा और इंडिया संस्कृत लर्न करने के लिए और सब यहाँ पर स्क्रिप्ट देखने के लिए। और जो इनकी तिब्बती भाषा है, भूटिया लैंग्वेज जो कहलाई जाती है, वो गुप्ता स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उसकी जेनेसिस ही इंडियन लैंग्वेज में है। फिर अगर आप 8th सेंचुरी में आए तो किंग ट्रिसोंग डेत्सन थे तिब्बती। तो उन्होंने सब इंडियन बुद्धिस्ट मास्टर्स को वहां पर बुलाया तिब्बत में,
आचार्य शांता रक्षिता, गुरु पद्मसंभवा जो बहुत महान महासिद्ध थे, तो उनको बुलाया कि वहां पर बौद्ध धर्म का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए साम्य मोनेस्ट्री में। और अगर आप देखें जाए तो ये जो विनाया का मोनास्टिक का भी जो है तो वो यहीं से गया है, जो मूल श्रवासी वार्दिन विनाया का और वो ट्रेडिशन है। तो आचार्य संतरिक्षता ने पहली बारी साम्य मोनेस्ट्री में वहां पर भिक्षु बनाए। इस ट्रेडिशन में देखा जाए तो चीन वगैरह का थोड़ा अलग है, उनका धर्मगुप्ता है, तो ये मूल श्रवास्तीवादन ट्रेडिशन का वो इंडिया में वो ही है जो तिब्बत में है। तो ये शुरुआत थी। उसके बाद पूरे बरसों से जैसे चल रहा है कि हमारे जो आज बॉर्डर्स है ना, जो ये नेशन स्टेट आ गए, जो सॉवरेनिटी का नोशन आ गया और ये मिलिटराइज्ड पुलिस्ड बॉर्डर्स, ऐसा तो पहले कुछ था ही नहीं तिब्बत और इंडिया के बीच। क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो रिलीजन के लाइफ में, कल्चर के लाइफ में, ट्रेड में आना जाना खूब रहता था। फ्रीली आना जाना, जैसे मैं आपको अभी बायोग्राफी दिया खुनू लामा रिम्पोचे की जी। तो इस टाइम में ऐसा कोई पासपोर्ट वगैरह ये चेकिंग ये ऐसा कुछ नहीं, वो आना जाना। और सिर्फ खुनू लामा रिम्पोचे भी नहीं, आप पूरे हिमालयन रीजन में देखे बकुला रिम्पोचे। अब बकुला रिम्पोचे जाकर तिब्बत में पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नेहरू जी उनको मंगोलिया भेजते हैं एम्बेसडर। तो बहुत आना जाना कल्चरल सब, क्योंकि बेस में सेम बुद्धिस्ट नालंदा ट्रेडिशन सबका जॉइंट है। तो ये है हमारी हिस्टोरिकल ओवरव्यू और हर चीज में हमारा बहुत इंटरट्वाइंड है, क्योंकि फाइनली तिब्बती बुद्धिज्म इज लिविंग नालंदा बुद्धिज्म, which is Indian. All right. तो there is no अंतर ही है नहीं उसमें। और अगर आप लोगों की लाइफ में देखें, अभी दलाई लामा जी पवन पावन जी लद्दाख में बैठे हैं, अगर आप हिमालयन लोगों का देखें उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो जा रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए सब कुछ, तो वो सभी रिकॉग्नाइज करते हैं ना, जो ग्रेट ग्रेट बोधिसत्वास और बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी कॉमन रिकग्निशन है इन कम्युनिटीज में। Nice. तो ये है हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन तिब्बत के साथ। It is really informative. Ma'am, next question is नालंदा और विक्रमशिला जैसे एंशिएंट सेंटर्स का तिब्बतन बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप के डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस रहा है? तो ये है कि जैसे इंडिया तिब्बती सोसाइटी में इंडिया कैसे देखी जाती है, जैसे दलाई लामा जी भी 1959 के पहले वो 1956 में इंडिया में आए थे 2500 इयर्स ऑफ बुद्धास को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो आए थे यहाँ पर। वो इंडिया को तिब्बती सोसाइटी में इंडिया आर्य भूमि है, ये है लैंड ऑफ बुद्धा शक्यमुनि और लैंड ऑफ बहुत बोधिसत्वास, बहुत टीचर्स, बहुत ऐसा इनको वो इंडिया को ऐसे मानते हैं। क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिलेशन मैं आपको कह रही हूँ। अब सिग्निफिकेंस ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला इन शेपिंग टिबेटन बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप, जैसे मैं अभी आपको कह रही थी आचार्य शांतारिक्षता वगैरह, वो सब नालंदा ट्रेडिशन, नालंदा के टीचर्स हैं। तो establishment of Buddhism in Tibet happened through Nalanda and Vikramshila and these monasteries. अब नालंदा को देखे जाए तो 5th to 12th century नालंदा बहुत फ्लरिश किए। अब आप देखे जाए तो अब्रॉड वेस्टर्न जो सबसे फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरा अल्मा मेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वो नालंदा की डिमाइस या नालंदा के अंत के बाद आया है वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में। तो इंडिया इतना एडवांस था कि नालंदा 5th से 12th सेंचुरी वहां पर, और विक्रमशील लेट 8th-9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। अब इनमें जो स्कॉलर्स थे, इनकी जो शानदारी थी कि बहुत दुनिया से यहाँ पर स्कॉलर्स आए। इनकी शानदारी थी कि बहुत इनकी पेडागॉगी, इनकी पढ़ाई, इनकी डिबेट, इनकी सोच, क्योंकि ये ट्रेडिशन में इतना फेथ बेस्ड नहीं है। इस ट्रेडिशन में जैसे बुद्धा ने अपने आप से कहा कि मेरे टीचिंग्स फेथ में ना एक्सेप्ट करो, उसको जांच करो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको क्वेश्चन करो और फिर ही उसको अपनाओ। जैसे गोल्ड का टेस्टिंग करते हैं तो टीचिंग्स का टेस्टिंग करो।
तो अब ये जो नालंदा की हॉलमार्क थी कि वहाँ जो पढ़ाई थी बहुत बहुत रिगरस थी। अभी आप देखा जाए तो 22-22 साल की डिग्री चलती है ना इनके डॉक्टरेट प्रोग्राम, गेशे की प्रोग्राम। ओके। तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसे था, और वो लिबरल आर्ट्स भी था। वहां पर लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ग्रामर सब कुछ की पढ़ाई थी, और बहुत रिगरस कि हर 4 कोने में वहां पर उनके फॉरमोस्ट स्कॉलर खड़े रहते थे। अगर किसी ने अंदर आना था उनको पहले डिबेट करना था उनके साथ, और अगर वो डिबेट में कुछ अपना सही दिखाएं कि उनकी कोई होशियारी है तो फिर ही उनको एंट्री करना देते थे। अच्छा। तो अब ये नालंदा ट्रेडिशन तिब्बती से कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे मैं कह रही हूँ शांतारक्षिता आचार्य, शांतारक्षिता वगैरह ये सब नालंदा से ही तिब्बती किंग्स ने बुलाकर वहां पर बौद्ध धर्म को एस्टैब्लिश किया। मैं सबसे फेमस एग्जांपल दूं आपको, जोगोजे पैल्डेन अतीशा। हाँ जी। ये विक्रमशिला के वाइस चांसलर थे। ये बंगाली, इनका जन्म हुआ जो आज इनकी विलेज बांग्लादेश में है। तो फिर ये आते हैं नालंदा में स्टडी करते हैं, फिर ये इंडोनेशिया में जाते हैं क्योंकि बोधिचित्ता में उनको 12 साल वहाँ टीचिंग्स मिली। उनके टीचर था सर लिंगपा। तो उन दिनों में इमेजिन 11th सेंचुरी में, क्योंकि उनका जन्म था, लाइफ स्पैन 982 टू 1054 उनके इयर्स ऑफ लिविंग। तो 11th सेंचुरी में इंडोनेशिया गए, पर 12 साल टीचिंग्स पकड़े। फिर वहां पर वापस आए यहाँ विक्रमशिला का वाइस चांसलर। फिर से यहाँ पर तिब्बती किंग था बहुत, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भेजा, बहुत हार्डशिप में उनके साथ सोना भेजा कि तुम प्लीज आकर तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत में उस टाइम तक बहुत बौद्ध धर्म नीचे डिजेनरेट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि प्लीज तुम आके यहाँ पर री एस्टैब्लिश करो। वो सेकंड फेज ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज अराउंड 10th 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो अब लामा अतीशा, जोगोजे पैल्डेन अतीशा जो कहते हैं, वो वहां जाते हैं एडवांस उम्र में। और फिर उन दिनों में देखो तिब्बत पहुंचना, फिर वो तिब्बती सीखे। फिर उन्होंने लैमरिम का जो पूरा लैम्प टू द पाथ ऑफ द टीचिंग्स, लैम्प टू द पाथ ऑफ द ग्रेडेड टीचिंग्स, ये एक जॉनर है टीचिंग्स का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धा के 84,000 टीचिंग्स को एक सिंपल स्ट्रक्चर में बनाया ताकि कोई अपने लाइफ टाइम में पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली, थरली, इनकॉर्पोरेटिंग एवरीथिंग from start to finish. matlab they incorporate the whole of the sutra, Mahayana teachings, Vajrayana, everything. तो ये लैमरिम टीचिंग्स जो जॉनर जो तिब्बती बुद्धिज्म में भी हर सेक्ट में फॉलो होता है, गेलोक, कग्यू, निंगमा, सक्या, सब में। तो ये लैमरिम का ट्रेडिशन, द फाउंडर इज जोगोजे पैल्डेन अतीशा, एंड दे वेनरेट हिम बिकॉज ये जो बोधिचित्ता के टीचिंग्स जो 2 मेथड्स है, इक्वलाइजिंग एंड एक्सचेंजिंग सेल्फ एंड अदर, एंड 7-4 cause and effect. ये 2 lineage of teachings that come from Arya Nagarjuna, Gonpo Lundop, again Nalanda, greatest of teachers of the 1st century, and then from the other side comes from Arya Maitreya and down to Asanga, another Nalanda teacher. Jogoje Palden Atisha carried all these lineages. So this is the deep connection. So again, Tibetan Buddhism is Nalanda tradition, but it is in the living form of Nalanda tradition. India lost it because of the ransacking of Nalanda University 12th century में, the library burned for weeks and weeks. तो उसके बाद तिब्बत में सब प्रिजर्व हुआ है। तो अभी if India is serious about our Buddhist legacy, that we are the world's repository of the Buddha's teachings, and it took birth here and root here, and we are the epicenter of that. Then we must preserve this tradition. We must back translate. We must do all these things. So Tibetan language ने कैसे संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिजर्व किया, जबकि इनकी रूट्स तो इंडिया में है ना? इस स्कॉलरी को ट्रेडिशन की तरफ से आप कैसे देखती हैं? तो यही बात हुई रक्षा जी के, देखो सॉन्गस्टन गैम्पो किंग 7th सेंचुरी के, उन्होंने थॉनमी संबोटा को इंडिया में भेजा। उन्होंने स्क्रिप्ट्स पढ़ के फिर उन्होंने गुप्ता स्क्रिप्ट के बेसिस में अपनी लैंग्वेज बनाई। अभी आप देखें तो संस्कृत और तिब्बती में जो एक लफ्ज का, और सॉरी मैं हिंदी में भी उर्दू में भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं था पंजाबी जन्म लेता है ना मेरी लैंग्वेज ऐसे होते।
अभी लफ्ज आप संस्कृत में देखें, उसका जितना मीनिंग हो सके, जैसे दुख, अब दुख, सफरिंग तो वो पूरा इनकैप्सुलेट नहीं करता ना। तो सिमिलरली जो तिब्बती भूटिया लैंग्वेज, उसकी जेनेसिस ही बौद्ध धर्म फिलोसफी में हुई। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम यूज कहते हैं ना सेंटिएंट बीइंग या लिविंग बीइंग, इसका तिब्बती में इसका लफ्ज होगा सेमचेन। तो सेमचेन का मतलब लिटरल ट्रांसलेशन इज माइंड पोजेसर। तो अभी आप देखा जाए तो उसमें इतना क्लियर मीनिंग है ना कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता कि उसका क्या मीनिंग है। अब इंग्लिश वगैरह बुद्धिज्म फिलोसफी के बेसिस में नहीं ओरिजिनेट हुई है ना। तो कभी उसमें एक्सप्रेशन बहुत सुपरफिशियल हो जाते हैं। पर पाली, संस्कृत और तिब्बती 100 सी लैंग्वेज समझो उसको, क्योंकि उसका जो मीनिंग और टेक्स्ट है वो बिल्कुल एकदम से हार्ट में जाता है जब वो तिब्बती में उसको सुनो। तो अब जैसे मैं कह रही थी, नालंदा डिस्ट्रॉय हो गया तो तिब्बत ने अब सब संभाला रखा है। 1000 साल हो गए, 11 साल, जैसे पवन पावन जी दलाई लामा जी कहते हैं कि इंडिया गुरु है, हम चेला है। उन्होंने सब रखा हुआ है अलाइव। और मैं ये कहना चाहती हूँ, तो तिब्बती इज द ओनली कंप्लीट ट्रेडिशन, क्योंकि उनका सूत्रा और ये महायाना और ये तांत्रा सब जुड़ा हुआ है, सब विनाया, मोनास्टिक सब रखा हुआ है इन कंप्लीशन। तो वहां पर अलाइव रखा हुआ है। तो एज आई सेड, इफ वी आर सीरियस अबाउट दिस, वी मस्ट बैक ट्रांसलेट, आर्काइव्स, प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशंस। दलाई लामा जी का यहाँ प्रेजेंस 65 इयर्स और गिनते, और उनकी जो पर्सनालिटी, उन्होंने कितना एम्फेसिस डाला है पूरा ये रिक्रिएट करने के लिए एग्जाइल में, जो चीन ने तिब्बत में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसका इंडिया मस्ट टेक द बेनिफिट बाय, यू नो, दैट इज आवर रिसोर्स नाउ। एंड अगर आप देखा जाए तो बकुला रिनपोचे जो थे, उन्होंने जब पार्लियामेंट में थे बहुत कोशिश की कि भोटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। Why? For this reason. अब इंडिया ने कभी किया नहीं, वो हमारी लैक ऑफ फोरसाइट है। पर अभी भी हो सके तो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ही ट्रेडिशन उसमें प्रिजर्व्ड है। मैम, आज के टाइम में इंडिया के मोनेस्ट्रीज जैसे किन्नौर, स्पीति, धर्मशाला, लद्दाख और सिक्किम, क्या ये इंडिया की तिब्बतन स्पिरिचुअल लाइफ में ऑनगोइंग रोल को रिफ्लेक्ट करते हैं? और तो और बोध गया में जैसे सरनाथ जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स हैं, आज भी तिब्बतन स्पिरिचुअल जर्नी में कितने इम्पोर्टेंट हैं? तो देखिए रक्षा जी, जहाँ के ये बात आई इंडियन स्पिरिचुअल साइट्स, तो इंडिया बुद्धिस्ट के लॉर्ड बुद्धा की लाइफ की पूरी की साइट्स इंडिया में है। हाँ जी। या चलो समझो नेपाल में 1-2 हो गए, हाँ। बाकी तो यहाँ पर हैं, जो कोई भी बुद्धिस्ट वर्ल्ड में यहाँ पर आएगा अपने लाइफ में मल्टीपल टाइम्स। तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर की हमको और करना चाहिए इस दौर में, क्योंकि सिर्फ तिब्बती नहीं है, बाकी भी जो भी हैं ईस्ट एशिया वगैरह के, उनको इंडिया में जो भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो इंडिया में जरूर आएगी। क्योंकि ये सब बुद्धा की साइट्स ऑफ हिज लाइफ यहीं पर है। तो वो आएंगे। अब जाकि ये बात आए कि तिब्बती कैसे रिलेशनशिप है मोनेस्ट्रीज हिमालयन रीजन में, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी, अब जब दलाई लामा जी एग्जाइल में आए, वो ग्रेटेस्ट ऑफ बोधिसत्वा होते हुए, तो उनका लिविंग इन इंडिया और उनकी अपनी पर्सनालिटी, जो उनकी एम्फेसिस है कि बहुत रिगरस स्टडी हो, डिबेट हो, स्टडी ऑफ साइंस भी हो जाए। अभी नन्स और गेशमा, मैं भी एक नन हूँ, अभी गेशमा डिग्री भी पॉसिबल है। तो दलाई लामा जी, पवन पावन जी ने बहुत एम्फेसिस डाला है। और इन मॉनेस्ट्रीज में सब मिक्स पॉपुलेशन है। तिब्बती लोग हैं, लद्दाखी है, सिक्किमीज है, किन्नौरी है, लाहौली है, इनफैक्ट मंगोलियन वगैरह भी है, भूटानीज भी आना जाना है। तो यू कैन से दैट, यू नो, ये मिक्स लिविंग इन अ वे इट इज अ कॉमन बेस। एंड यस, दलाई लामा जी बहुत रिजुवेनेशन ऑफ बुद्धिज्म इन हिमालयन रीजन। अब व्हाट डू आई मीन, बिकॉज मैंने देखा भी है ये वीडियो और सुना भी है। दलाई लामा जी जब कहीं गए हैं रिमोट मॉनेस्ट्रीज में, और उन्होंने जंगचुप के ऊपर, ये बोधिचित्ता के ऊपर और तोंगनी शून्यता के ऊपर वहाँ के मोनास्टिक्स वगैरह को पूछा और ले पीपल को, और जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि आप देखो रिचुअल वगैरह को थोड़ा कम करो,
पढ़ाई और इन चीजों में लगो, क्योंकि की मैसेज ऑफ बुद्धा शाक्यमुनि एंड बौद्ध धर्म इज टू थिंग्स, टू विंग्स रक्षा जी। ओके। एक विंग है शून्यता, विजडम ऑफ शून्यता, ज्ञान प्रज्ञा ऑफ शून्यता, एंड द अदर साइड इज प्रैक्टिस ऑफ करुणा, कंपैशन, बोधिचित्ता। इन दोनों को आप पकड़ो। अभी जैसे पवन पावन जी, उनकी उम्र बढ़ रही है, वो और सीधा भी कह रहे हैं कि आप, अगर आप मेरे फॉलोअर, आप कह रहे हैं आप अपने आप को, तो अगर आप ये दो चीज का नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप बोलो कि आप मेरे फॉलोअर हैं। तो उन्होंने हिमालयन रीजन में बहुत रिजुविनेशन किया है, मॉनेस्ट्रीज का, सब कुछ का। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड होपफुली जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो इसको इच्छा शक्ति से इसको अपनाएं। सो नेक्स्ट मैम, क्या सच में ये रियली, आई रियली वांट टू नो एंड एवरीबॉडी वांट टू नो, क्या आज के यंग तिब्बतियंस अपनी आइडेंटिटी को इंडिया के हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन से कनेक्ट फील करते हैं? ये इसमें कितनी सच्चाई है? जो तिब्बती यंगस्टर्स हैं, अब उनका ये बात है कि वो इंडिया को घर समझते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तिब्बत तो कभी देखे नहीं है, और इंडिया में जब वो बाहर के मुल्क में जाते हैं और वो थोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर बहुत प्रेशर है, इंडिया ने भी और करना था उनके टुवर्ड्स तिब्बती, पर जैसे अगर वो कहीं और भी दुनिया में जाते हैं तो उनको होम सिकनेस फीलिंग इंडिया की आती है। अच्छा। वो मिस करते हैं दाल चावल थाली, डोसा, मसाला चाय। मैं आपको सीधा बताऊं तो इंडियन म्यूजिक, उनको बॉलीवुड बहुत पसंद। हाँ, तिब्बती बच्चों को। तो अब ये बात हुई। अब बाकी का जो इनकी स्पिरिचुअल रूट्स आप जानते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी रक्षा जी की मैं इतने साल पढ़ी हूँ, ये फिलॉसफी मेरा 15 साल तो चल ही रहा है जी। तो मैंने एक चीज देखी है कि जो इम्बाइब, जो ये बौद्ध धर्म का एक्चुअली लिविंग करते हैं ना, वो जो हिमालयन रीजन के लोग हैं, जो तिब्बती हैं, वो बहुत बहुत डीप जाता है जेनरेशंस में। Okay. तो मैं कहूंगी कि इनका जेनरेशन से आता है ना, तो ये जो इनका, जैसे ये निंजे की बात करते हैं, कुछ गरीबी देख लें या कोई किसी को दुख में देखें, तो इनका जो फीलिंग्स, इनका जो अब के जैसे बिहेवियर्स रहता है, या समझो इम्पर्मनेंस में मिटाकपा जो तिब्बती में बोला जाता है, तो उसका इनका जांच बहुत डीप लेवल में है। जो हमारे जो बाहर से आते हैं और पढ़ते हैं, हमारे बोली में तो बहुत तेज हो सकते हैं, पर जांच अपने एक्सपीरियंस में लाना बहुत अलग बात है। तो क्योंकि इनके एक्सपीरियंस भी बहुत मुश्किल हुए हैं, पूरे फैमिलीज बिछड़े हुए हैं, चीन इनके इतना दबाव लगा रहा है। अब चीन में सब कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल तिब्बती भाषा को बिल्कुल ओब्लिटरेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी 65 इयर्स की बात भी उनको इतना डर लगता है दलाई लामा जी से, पवन पावन जी, कि उनके प्यार से, उनके फॉलोइंग से। तो इस सिनारियो में तिब्बती ने अपने रूट्स को पकड़ा हुआ है, और जो इंडिया की फीलिंग है उनके लिए तो घर है। Undoubtedly, it is true. Undoubtedly, वो हमेशा हर अपॉर्चुनिटी में थैंक यू इंडिया बोलते हैं। उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है, उन्होंने गाने बनाए हैं, ये वो तो इंडिया को भारत माता कहते हैं, और जैसे मैं पहले कह रही थी, आर्य भूमि। क्योंकि जो आने वाले सब 3000 बुद्धाज हैं ना रक्षा जी, वो सब इनलाइटनमेंट बोध गया में होगा। यस, तो इट इज अ वेरी सेक्रेट साइट, ऑलवेज विल बी। एंड मैं, सिंस मैं हिमालयन यंगस्टर्स से बात कर रही हूँ, किन्नौरी यंगस्टर्स भी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं भी आउटसाइडर हूँ, है ना, मैं सिख फैमिली में पैदाइश, और कहाँ से कहाँ इतना पढ़ी हूँ। और हमारी फैमिली ऐसे रिलीजियस नहीं थी। मेरे फादर, मैं कहूँ तो उनके पेपर्स में अब बहुत बाबा नानक के आ रहे हैं, जो तिब्बती लोग मानते हैं कि गुरु रिम्पोछे का एमिनेशन है। पर वो अपनी लिविंग, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, पर ऐसे हमारे घर में नहीं था कि हर रोज कहीं गुरुद्वारा ऐसे जैसे रिलीजियस। तो इस सिनारियो में जो मैंने अपना लाइफ पाथ चूज किया है, क्यों चूज किया है? क्योंकि जैसे हम एज करते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं और आप लाइफ को देखते हैं, तो जब आप फिलोसॉफिकली सोचना शुरू करते हैं, और बौद्ध धर्म का ये बहुत आकर्षण है मेरे लिए पर्सनली, कि वहां पर क्रिएटर की बात नहीं ज्यादा करते, वो कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। जैसे किसी चीज का कोई वजह हो, कारण हो, उसी के अकॉर्डिंगली फिर उसका रिजल्ट होगा, उसका नतीजा होगा उसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी। तो उसमें अपने आप को हर के हाथ में बहुत पावर आ जाती है कि ठीक है, मेरे
अच्छा नहीं चल रहा तो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये चेंज कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसी चीजों में ये है हार्ट एसेंस ऑफ बुद्ध धर्म, जो किन्नौर के ट्रेडिशन है, हिमालयन रीजन का ट्रेडिशन है, तिब्बत का ट्रेडिशन है। अब जो छोटे लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो आप ये एक चीज सुन लो कि ये आपका ट्रेडिशन है, आपको पकड़ के रखना चाहिए पूरे लाइफ में। क्योंकि मैं मॉडर्न एजुकेशन की प्रोफेसर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और पढ़ाई भी हूँ। यस। तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमको पढ़ाते हैं हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हैव अ जॉब, यस, and how to do all these things. But True. the biggest life skills like how to deal with tragedies and other things like parents का क्या respect देना चाहिए, teachers का क्या respect, हम संस्कृति की बहुत बात करते हैं, पर हमारे इंडिया में भी अब लूज हो रहा है ये कैपिटलिज्म के साथ, कंजम्पशन के साथ। तो मैं किन्नौरी बच्चों को जो सुन रहे हैं, आपको कहूंगी अपने ट्रेडिशंस को पकड़ो। ये नहीं क्योंकि कोई आपके दादा परदादा कह रहे हैं, पर आपके अपने लाइफ में बहुत यूजफुल आएगा। आखिरी में वो 3 जूल्स है ना, वो ही आपके काम में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धा, धर्म और संघ। आई विश जो बच्चे हैं अभी यहाँ पर बुद्धा स्कूल में भी हैं, लोकल्स हैं, एंड मैं देखती हूँ काफी वो लोग डेडिकेटेड हैं अपने कल्चर को लेके, लेकिन समहाउ जब बाहर स्टडी करने की बारी आती है तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फाइनली मैम आपसे जानना चाहूंगी, शिव नादर यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हिमालयन स्टडीज जैसे इंस्टीट्यूट इंडो तिब्बतन इंटेलेक्चुअल टाइज को स्ट्रेंथन करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो रक्षा जी, इसमें आई वांट टू रियली कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर डॉक्टर जैबिन जेकब ऑफ हिमालयन स्टडी सेंटर एट शिव नादर यूनिवर्सिटी। तो मेरी इंस्टीट्यूशन है, मेरी लॉयल्टी है, पर मैं उस हिसाब से नहीं कह रही। इन्होंने जो सेंटर शुरू किया है उसकी इतनी जरूरत थी जी, पर इस पॉइंट तक वो somehow it never came into being। तो इन्होंने जो ये किया है, मैं 2-3 चीजें कहूंगी। इसकी एक खूबी है कि इन्होंने डीकोलोनाइजेशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स एंड नॉलेज सिस्टम्स ऑन हिमालय एंड तिब्बत स्टडीज। इसका क्या मतलब, हम डीकोलोनाइजेशन की बहुत बात कर रहे हैं, पर वो होता नहीं है। और इसका ये मतलब कि सिर्फ ये लोग जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप हैं या जो दिल्ली में बैठे हैं, सिर्फ वो ना हो जिसकी आवाज सुनी जाए, जो हिमालय के ऊपर लिखे, तिब्बत के ऊपर लिखे। ये हिमालय सेंटर में तिब्बती लोग, हिमालयन लोग सब अपनाए, वो भी लिख रहे हैं, वो भी अपना ग्राउंड अप ग्रैन्युलर पर्सपेक्टिव ला रही है। तो ये डीकोलोनाइजेशन ऑफ हिमालयन स्टडीज एंड तिब्बती स्टडीज, इफ यू कैन से इन वन सेंस, ये इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज कहूँ तो हिमालयन लोग, जैसे जो पहाड़ के लोग हैं, तिब्बती भी, वो काफी जेन्युइन ह्यूमिलिटी और शाइनेस में चलते हैं। उनको लगता है कि हम वो ना, जैसे मेन स्ट्रीम इंडियन वगैरह इतने कम्पिटिटिव है जी, तो उस हिसाब में उनकी जो जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, तो वो थोड़ा पीछे ही रहते हैं अपने आप को। वो समझते नहीं है कि मैं लिख सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वो थोड़ा बदलने की कोशिश, और ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। और दूसरी बात कि इन कम्युनिटीज में ना, कभी ये रहता है कि अलग अलग, देखो ये अलग है, मैं किन्नौरी हूँ, वो लद्दाखी है, ये अरुणाचली है, हम तिब्बती हैं। तो ऐसा ये सेंटर सब कम्युनिटीज के लोग, सब पीपल एक साथ, उनकी स्कॉलरशिप कम्युनिटी, एक दूसरे के साथ डिस्कशन, प्रचारण, फिर एडवांसमेंट। तो ये सेकंड फीचर है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम वेस्ट की तौर नहीं देख रहे, हम एक दूसरे की तौर देख रहे हैं। इस सेंटर ने ये बहुत अच्छे से किया है। और फिर ऑफ कोर्स इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी, ये गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट वगैरह की बहुत जितने तौर से हो सके, जैसे चीन ने तो कितने रिसोर्सेस किस टाइम से लगाए हुए हैं कि ये सब रिसर्च करे उन लैंग्वेजेस में, सब कुछ ऐसा ना। तो इंडिया भी, इट्स अ गुड थिंग नाउ कि हम भी जाग रहे हैं, समझो।
और हम भी इन चीजों की इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। और फिर ऐसा सेंटर ये सिर्फ एकेडमिक और स्कॉलरशिप नहीं है, इसका बहुत पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, ये बहुत इनपुट्स दे रहे हैं। तो आई वुड से मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर डॉक्टर जाबिन जेकब एंड टू शिव नाडर यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ एक्सीलेंट सुपर्ब यूनिवर्सिटी दैट हैज गिवन सच अ प्लेटफॉर्म। सच में आज का सफर सच में एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म जर्नी फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत टू द डीप रूटेड कल्चरल वैल्यूज ऑफ करुणा एंड अहिंसा. We got to understand how these two regions are bound by centuries of trust and tradition. प्रोफेसर कावेरी गिल जी ने हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल टाइज आज भी जिंदा हैं और फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंच रहे हैं. मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनवैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस. इट वाज ट्रूली एन ऑनर टू होस्ट यू ऑन आवर शो. और दोस्तों, ये याद रखिए, रिलेशनशिप्स बिटवीन नेशंस aren't built only on agreement or borders, but also on shared culture, shared history and shared dreams. मैं आरजे रक्षा आपसे यहीं इजाजत लेती हूँ. Stay curious, stay connected and keep celebrating the ties that make our world richer. फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए stay tuned. 88.4 FM, Voice of Kinnaur, your land, your voice.